أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، سورت کا رکوع نمبر 10 اور پارے کا رکوع نمبر 16، آیت نمبر 73۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کرو کفار سے، والمنافقین اور منافقین سے، واغلظ علیہم اور سختی کرو ان پر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بری جگہ ہے لوٹنے کی، المصیر لوٹ کر جانے کی جگہ۔ یہ آیت کریمہ جو سورۃ توبہ میں آیت نمبر 73 ہے، اسی طرح 28ویں پارے میں سورۃ التحریم کے اندر، سورۃ التحریم 28ویں پارے کے آخر میں اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ یہی آیت کریمہ سورۃ تحریم میں بھی ہے، جہاد کرو کفار سے اور منافقین سے۔ اس سے پہلے تو یہی حکم تھا کہ جو منافق لوگ ہیں ان کی جو حرکتیں ہیں ان پر درگزر کی جائے، معاف کیا جائے، اعراض کیا جائے اور ان سے آسانی والا معاملہ کیا جائے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر یہ حکم ملا کہ اب ان پر سختی کی جائے۔ سختی، پہلے جو نرم رویہ تھا اس کے دو سبب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ لوگ کہیں گے دیکھو اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف ہو گئے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس زیادہ وقت ہو اپنے ایمان اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے۔ اب جو وقت ہے ایمان اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے وہ بھی کافی گزر چکا تھا، اور اللہ کے فضل سے اسلام ایک قوت بن چکا تھا۔ اب یہ حکم ہو گیا کہ اب منافقین سے نرمی والا مسئلہ نہیں، درگزر والا نہیں، بلکہ ان کے شر کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے اور روک دیا جائے۔ پیارے رسول علیہ السلام نے ساری زندگی منافقین کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی، قتال نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے اسلام کے خلاف کافی منصوبے بنانے شروع کر دیے اور ایک مسجد بھی قائم کر لی، مسجد ضرار، جس کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت نہیں تھا بلکہ منفی مقاصد تھے، تو پیارے رسول علیہ السلام نے اور صحابہ نے اس مسجد کو بھی گرا دیا، کیونکہ اب حکم یہ آ گیا ہے کہ وغلظ علیہم، ان پر سختی کرو،
उन्होंने जो प्रोग्राम तय किया हुआ था उसको खाक में मिला दिया। गुज़श्ता जो अहकाम थे वो ख़त्म हो गए। अब ये हुक्म है कि उन पर सख्ती करो और उनके खिलाफ भी जिहाद करो। यहलिफून बिल्लाह, वो कसमें खाते हैं अल्लाह की, मा कालू, उन्होंने नहीं कहा, वलक़द कालू कलिमतल कुफ्रे, उन्होंने कहा कुफर का कलमा, व कफरू बाद इस्लामिहिम, और कुफर किया अपने इस्लाम के बाद, वहम्मू, और उन्होंने इरादा किया, बिमा लम यनालू, जो नहीं वो हासिल कर सके, हासिल नहीं कर सके, इरादा तो किया था। पहली बात कि बातें और गुफ्तगू बड़ी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, जब वो चीज़ सामने आती तो इनकार कर देते, मुकर जाते। हमने तो नहीं कहा, हमने ये लफ्ज़ नहीं कहा। चुनाचे हदीस में बड़ा तफसील के साथ एक वाक़या है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं एक लड़ाई में था, मैंने अब्दुल्ला बिन उबई से सुना, वो कह रहा था इन लोगों पर खर्च ना करो जो अल्लाह के रसूल के पास है। ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह, ये सूरह मुनाफ़िकून में आ रहा है 28वें पारे में। इन पर खर्च ना करो यहाँ तक कि ये मुंतशिर हो जाएं, जो आपके इर्द गिर्द हैं ये भाग जाएं। और दूसरी बात ये कहने लगा कि जब मदीना पाक पहुँचेंगे तो जो ज़्यादा इज्जत वाला है वो जलील तर को निकाल देगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बुरी बुरी बातें। लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, ये भी सूरतुल मुनाफ़िकून में है 28वें पारे में। हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने ये सारी बातें अपने चचा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान की। उन्होंने रसूलुल्लाह से इन तमाम बातों का तज़किरा कर दिया कि ये बात कर रहा है अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफ़िकीन। जब उसको बुलाया गया तो साफ इनकार कर दिया, मैंने तो कोई बात नहीं की। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इतना परेशान हुआ कि सारी ज़िंदगी कभी परेशान नहीं हुआ था कि मेरी बात की अब तस्दीक कैसे होगी। फिर तस्दीक अल्लाह पाक ने फरमा दी और सूरतुल मुनाफ़िकून नाज़िल हुई और इस बात का इजहार किया गया कि ये बातें जो हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनाई हैं, इस जालिम ने कही हैं और बाद में इनकार कर दिया। ये सारा वाक़या सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4900 और सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2772 में मौजूद है। पहले बात कर लेते, बाद में इनकार कर देते। वहम्मू बिमा लम यनालू, उन्होंने वो इरादा किया जिसको हासिल नहीं कर सके, बड़े बड़े मनफी इरादे। एक दफ़ा ये इरादा किया कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीदी कर दिया जाए, ये भी अल्लाह पाक ने उनको नाकाम किया। फिर कहने लगे कि जो सहाबा के माली ज़राए हैं इनको बंद कर दो, इनको तावन ही ना मिले, इससे भी अल्लाह पाक ने उनको रसवा किया। फिर उन्होंने ये मंसूबा तय किया कि मदीना पाक में ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को आबाद किया जाए। अल्लाह पाक ने उनको वहाँ से वैसे ही निकाल दिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तमीर की जाए। मस्जिद ज़िरार जो काफरों का मोर्चा था असल में, अहले निफाक का और यहूद का, उसको भी गिरा दिया गया। ये भी कहने लगे कि तबूक पर जा रहे हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, कोई जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा। ऐसे ऐसे
गलत किस्म के इरादे। फिर एक बड़ी घटिया हरकत की कि वापसी पर उन्होंने आपस में तय किया, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सफ़र में तन्हा हो ना तो किसी तरीके से आपको शहीद कर दिया जाए। चुनाचे 12 के करीब आदमी थे, मुनाफिक लोग, जिन्होंने ये आपस में मशवरा कर लिया। अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 2 सहाबाए किराम आपके साथ हैं। और वो जो 12 मुनाफिक आए थे, उनकी सवारियों के चेहरों पर इन्होंने ऐसे वार किए कि वो सारे वापस दौड़ गए। रात का वक़्त था, अंधेरा था, तारीकी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान को उन मुनाफिकीन के नाम बता दिए। चुनाचे हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ये लक़ब मशहूर हो गया, साहिबो सिर्रे रसूलिल्लाह, अल्लाह के पाक नबी के राजदान। आपने इनको मुनाफिक लोगों के नाम बताए और कहा कि ये तुम्हारे पास राज है। तो ये बात अपने जहनों में नोट फरमा लीजिए, साहिबो सिर्रे रसूलिल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राजदान कौन थे? हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी बड़ी शान और अज़मत है। हदीस पाक में आता है, कानन नासो यसअलूना रसूल अल्लाह अनिल खैर, सारे लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खैर का सवाल करते थे। अल्लाह के नबी, नेकी क्या है? हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, वकुन्तु अस्अलहु अनिश्शर, मैं नबी करीम से सवाल किया करता था, अल्लाह के नबी, बुराई क्या है, गुनाह क्या है? जिस बात को आप गुनाह फरमा देंगे मैं उसके करीब ही नहीं जाऊंगा। लोग खैर का सवाल करते थे, मैं शर का सवाल करता था। बुराई क्या है, ताकि उससे बचा जा सके। साहिब सिर्र रसूलिल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदान, राज के साथी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से ही मस्जिद नबवी के इमाम हैं, इमाम अल हुज़ैफ़ी। हुज़ैफ़ी इसलिए कि हज़रत हुज़ैफ़ा की औलाद से हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह पाक हज़रत इमाम हुज़ैफ़ी के शरफ में मज़ीद बरकतें फरमाए। ये सारा वाक़या जो तफसीली जो मुनाफिकीन का 12 का सही मुस्लिम शरीफ किताबो सिफ़ातिल मुनाफिकीन हदीस नंबर 2789 और इसके अलावा दूसरी कुतुब अहादीस में ये मरवी है, ऐसा इरादा किया कि जिसको पा नहीं सके, कामयाब नहीं हो सके। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही, और उन्होंने नहीं इंतकाम लिया मगर इस बात का कि अल्लाह पाक ने उनको गनी कर दिया और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मदीना पाक में कोई इतनी रिज़्क़ की फरावानी तो नहीं थी। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और तिजारत बढ़ी, लोगों का आना जाना और बरकतें हुई, और आपने दुआ फरमाई। दुआ बड़ी खूबसूरत है। फरमाया प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐ अल्लाह, इन्ना इब्राहीमा अब्दुका व खलीलुका, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेरे बंदे और तेरे खलील हैं। उन्होंने मक्का पाक के लिए दुआ की थी, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, या अल्लाह इस शहर वालों को फलों का रिज़्क़ अता फरमा। मेरी ये दुआ है। आपने फरमाया, या अल्लाह, मदीने पाक वालों के रिज़्क़ में बरकत फरमा और मक्का की जो बरकत है उसे 2 गुना कर दे। 2 गुना बरकत की दुआ फरमा दी। चुनाचे बरकतें
वो चूंकि हदीस का लफ्ज है ना, वो मदीना पाक में ज्यादा है। मिसलई 2 गुना का लफ्ज बोल के दुआ फरमाई प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आपकी वजह से अल्लाह पाक ने फरावानी, तो किस चीज का ये लोग इंतकाम ले रहे हैं, किस चीज का बदला है? आपकी वजह से तो खैर आई है, बरकत आई है, और ये उल्टा आपके खिलाफ हो रहे हैं। फ़इन यतूबू यकु खैरन लहुम, अगर वो तौबा करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। वइन यतवल्लऊ, अगर वो फिर जाएं, युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा, अल्लाह पाक उनको अजाब देगा, दर्दनाक अजाब, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। चुनाचे दुनिया में मुनाफिक की क्या इज्जत है, कोई मोमन उसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं, उसकी मजलिस में बैठने के लिए तैयार नहीं। दुनिया में भी अजाब है, आखिरत में भी। वमा लहुम फिल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और उनके लिए जमीन में ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार। अब 3 आयात करीमा जो इससे आगे आयत नंबर 75 है, 76 और 77, इन आयात को पढ़ते हुए 23 मार्च यौम पाकिस्तान, इसको अपने ज़हन में रखना है, बड़ी समझ आएगी इंशाअल्लाह। वमिनहुम, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे, मन आहदल्लाह, जिन्होंने अल्लाह से आहद किया, अल्लाह पाक से वादा कर लिया। लाइन आता ना मिन फजलिही, अगर उसने दिया हमें अपने फजल से, लनसद्दक़न्ना, हम जरूर सदका करेंगे, वला नकूनन्ना मिनस्सालिहीन, हम जरूर हो जाएंगे सालिहीन में से, अगर अल्लाह पाक ने हमें दिया। ये आयतें नाज़िल तो उस जमाने में हुई जब कुरान पाक उतर रहा था। ऐ अल्लाह हमें दे दे तो हम नेक बन जाएंगे, सदका खैरात करेंगे। फलम्मा आताहुम मिन फजलिही, जब अल्लाह पाक ने दे दिया अपने फजल से, बाखिलू बिही, फिर उन्होंने बुखल किया। वतवल्लव वहुम मोरिजून, और फिर गए इस हाल में के इराज करने वाले, मुंह मोड़ने वाले, बेरुखी करने वाले। फ़अक़बहुम निफ़ाक़ा, तो अल्लाह पाक ने लगा दिया उसके नतीजे में निफाक, अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक डाल दिया। इला यौम यल्क़ौनहू, उस दिन तक जिस दिन वो अल्लाह से मिलेंगे। सबब इसका क्या बना? बिमा अखलफुल्लाह, उन्होंने खिलाफ वर्जी की अल्लाह के वादे की। मा वादू, जो वादा किया अल्लाह पाक से, वबिमा कानू यकज़िबून, और इस सबब से कि वो झूठ बोलते थे। बाज लोगों ने एक वाक़या बनाया हुआ है कि एक सहाबी थे हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने, उनके बारे में ये आयतें नाज़िल हुई हैं कि उन्होंने वादा किया कि अगर हमें माल मिल जाए सदका करेंगे, खैरात करेंगे। जब मिल गया तो फिर वो दीन से पीछे हटते हटते काफ़ी दूर चले गए। तो अजीज़ भाइयों, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि हज़रत सालबा के बारे में ये आयतें नाज़िल नहीं हुई, उसका सबूत कोई नहीं। लोगों ने लिखा है और सुनाते भी हैं अपने खिताबात में और खुतबात जुमा में भी, लेकिन सबूत कोई नहीं, कोई सनद ऐसी नहीं जिससे ये वाक़या साबित होता हो। असल हकीकत हाल ये है कि ये आयात करीमात आम हैं। कोई शख्स भी जो अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ देता है, अल्लाह पाक फिर उसको सज़ा देते हैं। और सज़ा क्या मिलती है कि उसके दिल में मुनाफकत पैदा होती है जो मरने तक जान नहीं छोड़ती। और आपने सुना है ना कि एक डॉक्टर साहब हैं, वो मरीज को दवाई देते हैं,
अल्लाह पाक उसको शिफा देता है। कोई ऐसा भी मरीज होता है जिसके बारे में डॉक्टर साहब कह देते हैं ये लाइलाज है, इसका इलाज हो ही नहीं सकता। जब अल्लाह से किए हुए वादे इंसान तोड़ता है तो लाइलाज हो जाता है, उसके दिल में निफाक जड़ें पकड़ जाता है, मोर लग जाती है, फिर इसका इलाज कोई नहीं। इला यौम यलक़ौनहु मौत तक, जिस दिन वो अल्लाह पाक को मिलेंगे। अब ज़रा हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के बारे में इन आयात करीमात की रोशनी में गौर करते हैं। 23 मार्च यौम पाकिस्तान अभी धूमधाम से लोग मनाते हैं, छुट्टी भी कर लेते हैं। 14 अगस्त है तो एक ही नारा था ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इन आयात को पढ़ें। वमिनहुम मन आहदल्लाह, अल्लाह पाक से वादा तो किया, लाइन आताना मिन फजलिही, अगर उसने दिया हमें ये मुल्क अपने फजल से, लनसद्दक़न्न, हम जरूर सदका तो खैरात करेंगे, सखावतें, वलनकूनन्न मिनस्सालिहीन, साले अल्लाह ताला के निज़ाम को कायम करेंगे। इस्लामी स्टेट और हमारा दस्तूर इस्लाम का, हमारा मंशूर इस्लाम का, दस्तूर भी मंशूर भी हर चीज इस्लाम के मुताबिक होगी। फलम्मा आताहुम मिन फजलिही, जब अल्लाह पाक ने अपना फजल कर दिया, बखिलू बिही व तवल्लव वहुम मोरिजून, फिर अल्लाह पाक के बताए हुए दस्तूर से बेरुखी और मंशूर से इराज, फिर दस्तूर भी अपने मंशूर भी अपने, और इस सारे सिलसिले में अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है ही नहीं। अगर है तो सिर्फ नाम ही है, मर्जी सारी अपनी है। अल्लाह की किताब ता क़यामत रहनुमाई है ना। तो जब 23 मार्च का दिन है तो इन आयात को पूरी मोहब्बत से गौर करेंगे तो बड़ी समझ आएगी। अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या वो नहीं जानते, बेशक अल्लाह पाक जानते हैं, सिर्रहुम उनकी सरगोशी पोशीदा बातें, व नजवाहुम और सरगोशियाँ, उनके राज भी जानते हैं, सरगोशियाँ भी जानते हैं। व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब, बेशक अल्लाह पाक गैबों को खूब जानने वाला है, बहुत खूब। अल्लाम मुबालगे का सीगा। ये वही वक़्त था ना जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना आधा माल पेश कर दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अपने घर का सारा माल। यही वो मौके था ग़ज़वा तबूक का जब सारा माल पेश किया गया, जनाब अबू बकर की तरफ से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर की तरफ से आधा माल, यही वो मकाम था। जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3675। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी का जब हुक्म दिया और फरमाया कि चंदा और फंड जमा कराया जाए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1000 दिनार लाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश करते हैं, झोली में रख देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिनारों को अपनी झोली में उलट पुलट करते हैं और क्या फरमाते हैं, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बअदल यौम, आज के बाद उस्मान जो भी अमल करे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। यही मौके था ग़ज़वा तबूक का, सूरह तौबा के नज़ूल का। अल्लाह पाक ने जो 2 किस्म के लोग रखे थे, अल्लज़ीन यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईन मिनल मुअमिनीन फिस सदक़ात, वो लोग जो सदकात में खुश दिली से हिस्सा लेने वाले मोमिनों पर तान करते हैं। यल्मिज़ून तान करते हैं, ऐब निकालते हैं। अल मुत्तव्विईन खुश दिली से ज्यादा सदका करने वाले। मिनल मुअमिनीन फिस सदक़ात वल्लज़ीन ला यजिदून इल्ला जुहदहुम,
और वो लोग जो नहीं पाते मगर अपनी मजदूरी फयस्खरून मिनहुम, वो मजाक करते हैं मुनाफिक लोग उन मोमिनीन से, सखिर अल्लाह मिनहुम, अल्लाह उनके मजाक की सजा देंगे, वलहुम अजाबुन अलीम, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। सुना हुआ है ना आपने कि जो दरांती है उसके एक तरफ दंताने हैं और दुनिया के दोनों तरफ। अब सहाबा किराम में दो किस्म के लोग थे, कोई ज्यादा चंदा देने वाले और कोई थोड़ा देने वाले। अच्छा, मुनाफिकीन ने किसी को माफ नहीं किया। जो ज्यादा चंदा दे रहा है कहते हैं रियाकार है, सब कुछ दिखलावे के लिए कर रहा है, नमूदो नुमाइश के लिए दे रहा है। जो थोड़ा चंदा दे रहा है उसको भी माफ नहीं किया। देखो 1 किलो जौ है और सुपर पावर को फतह करने जा रहे हैं, रोम को। देखो कैसा चंदा दे रहे हैं, बिल्कुल मामूली, और सुपर पावर से लड़ना है। इस 1 किलो जौ या 2 किलो जौ, एक साथ जौ, अल्लाह को भला इसकी क्या जरूरत है? थोड़ा दे उस पर भी इल्जाम, ज्यादा दे उस पर भी इल्जाम। मुत्तवीन ज्यादा देने वाले और इल्ला जुहदाहुम थोड़ा देने वाले, दोनों को ही माफ नहीं किया। हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि एक सहाबी मजदूरी करके आधा सा 1 किलो गल्ला लाए और एक और साहिब सहाबी रसूल हैं ज्यादा माल लाए। तो मुनाफिक कहने लगे निसफ सा की अल्लाह को क्या जरूरत थी, और दूसरे ने तो महज दिखलावे के लिए दिया है। उस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई, अल्लाज़ीना यल्मिज़ूना, वो लोग जो ऐब लगाते हैं, थोड़ा देने वालों पर भी ऐब, ज्यादा देने वालों पर भी ऐब, माफ ने किसी को किया। जुहदाहुम मशक्कत, ये हदीस पाक सही बुखारी शरीफ किताब तफसीर हदीस नंबर 4669। इसी तरह दूसरी हदीस पाक है कि जब सदके की आयत उतरी तो हम अपनी पीठों पर बोझ उठाते, उजरत हासिल करते। एक आदमी थोड़ा बहुत सदका लेके आता तो मुनाफिक उसको भी बातें बनाते, कुछ ज्यादा लेके आता उसको भी कहते कि ये रियाकार है, ज्यादा वाले को रियाकार कह देते और थोड़े वाले को कहते देखो अल्लाह को क्या जरूरत है इस बात की। सही बुखारी शरीफ किताब ज़कात हदीस नंबर 1415। तो अजीज भाइयों, किसी भी मोमन के मुतल्लक खैर का ही गुमान रखना चाहिए, खैर का। कोई थोड़ा दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, जितनी अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई है। इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। आप इस्तिगफार करें उनके लिए या ना इस्तिगफार करें, अगर आप माफ़ी मांगेंगे उनके लिए 70 मरतबा, हरगिज नहीं माफ करेगा अल्लाह पाक उनको 70 मरतबा। तो प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफकत और आपकी तबा में जो हलीमी है, आपने फरमाया कि मैं 70 से ज्यादा मरतबा दुआ कर लूंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत देखिए कि 70 से ज्यादा मरतबा दुआ कर लूंगा। फिर आगे अगले रुकू में आयत नाज़िल हो रही है कि वला तुसल्ले, आप इनकी नमाज जनाजा भी ना पढ़ें, कब्रस्तान जाकर भी इनके लिए दुआ नहीं करनी। दफन करने के बाद जब मैयत को दफन करके कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगते हैं, ये भी नहीं इनके लिए मांगनी, आपने दुआ करनी नहीं, कबूल होनी नहीं। अजीज भाइयों, क्या जुर्म है इनका? ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इन्होंने कुफर किया है अल्लाह ताला के साथ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह पाक नहीं हिदायत देते फासिक कौम को, नाफरमान कौम को। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ मांगे तो मैयत के पल्ले ही कुछ ना हो,
मैयत के पल्ले ही कुछ ना हो तो हाफिज अब्दुल मनान साहब नूरपुरी रहमहुल्लाह दुआ करेंगे तो क्या बख्शा जाएगा? हरगिज हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। 10 हाफिज साहब ले आओ, प्यारे नबी करीम आ जाएं जो रहमते दो आलम में, अल्लाह कहता है नहीं माफ करना, मैयत के पल्ले ही कुछ नहीं। और अब उन लोगों का जरा अंदाजा कीजिए जिनके पास ना अकीदा है ना अमल है और बैठे हुए हैं एक सहारे पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बख्शवा लेंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं नहीं, 70 मरतबा भी आप दुआ मांगे तो मैंने नहीं माफ करना। इसलिए मैयत के पल्ले कुछ हो तो फिर बात बनेगी ना। अगर मैयत के पल्ले ही कुछ नहीं तो चाहे 2 जहानों के सरदार आ जाए, इमामुल अंबिया आ जाए, 70 मरतबा जनाजा पढ़ा दे, माफी कोई नहीं मिलती। ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। जब कोई फौत होता है ना, लोग कहते हैं बड़े आलम को बुलाओ, फलां बुजुर्ग को बुलाओ। बुलाने वालों के पल्ले भी कुछ नहीं, मैयत के पल्ले भी कुछ नहीं। बड़ा आलम आके क्या करेगा? धक्का लगा लेगा, धक्का लगा के जन्नत में डाल देगा। ये सिर्फ एक रस्म है, रस्म की पूजा है। अगर मैयत के पल्ले कुछ है ना तो कारी अब्दुल सलाम साहब ही जनाजा करा दे तो बख्शा जाएगा, और मैयत के पल्ले अगर कुछ नहीं तो हाफिज अब्दुल सलाम साहब को बुला लो, हाफिज अब्दुल मन्नान साहब, कुछ नहीं बनना। अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।